Hello students, today's topic is Lave's equations. There are two methods for determining the conditions for diffraction in crystal. One is Bragg's law and second is these Lave's equations. So today we are going to discuss about Lave's equation. In previous lecture we had discussed about Bragg's law. The difference between these two is that in Bragg's law, Bragg had considered set of parallel planes in which atoms are periodically arranged. But Max von Laue, who derives these Lave's equation, has considered individual atom inside crystals and explained the condition for diffraction in crystals. So let's start with the two atoms inside individual atoms present inside crystals, which are these are A and B and are separated by distance r vector. And X-rays are used to study crystal structure, and here these X-rays is incident on these two individual atoms which had considered in this crystal system, which is A and B, and these incident beam is incident at angle theta and are getting reflected at angle theta. So this n naught cap vector and n naught cap vector here is the unit vector for incident beam, and this n1 cap and n1 cap is unit vector for scattered or say for reflected beam. Clear? So here this shows that whenever these X-rays interact with these atoms, then these X-rays will get reflected. Now if we consider this is beam 1 and this is beam 2 and we are observing diffraction pattern here, then we observe diffraction maxima or diffraction minima. It will depend upon the path difference between these X-rays reflected from these atoms. So we have to find the condition for maxima and minima. We have to determine the path difference between these two beams. So depending upon the path difference, we observe either diffraction maxima or diffraction minima. So first we have to evaluate what is the path difference if we consider this is beam 1 and this is beam 2 is incident at one at atom A and other at atom B, and this is the scattered beam. So path difference, if we observe that beam second travels extra path in comparison with beam first. So what will be the path difference? Here path difference will be equal to BC minus AD, and here r vector is the distance between these two atoms, which is equals to n1 A vector plus n2 B vector plus n3 C vector. Clear? Where n1, n2 and n3s are integers, and these A vector, B vector and C vector are three crystallographic axes. Clear? So we have to evaluate this path difference to observe either diffraction maxima or diffraction minima. So this path difference is equals to BC minus AD. And how we can determine this path difference? So to evaluate BC, let's consider triangle ABC. Clear? So in triangle ABC, suppose this is triangle ABC, this is right angle triangle, and mark this angle as phi. Clear? So from here cos phi is equals to cos phi, this is base and this is perpendicular and this AB is hypotenuse. So this cos is equals to BC over में AB. Clear? So BC is equals to AB cos phi. Here AB is the distance between these atoms. Now next see here if we find dot product for r vector into में n1 cap. यहाँ n1 cap क्या है? n1 cap is the unit vector for reflected beam, and if we evaluate dot product of this r vector with n1 cap, then this dot product is equals to r vector magnitude n1 cap magnitude cos phi.
ठीक है। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अगर हम लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, एंगल बिटवीन द। तो यहाँ से आर वेक्टर डॉट एन वन कैप किसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एन वन कैप मैग्नीट्यूड इंटू में कोस फाई। यहाँ एन वन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर कैप कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो अब कंपेयर कीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, this BC is equals to R vector dot N1 cap. Clear? In similar way, if we see in triangle ADB, clear? So in triangle ADB, ट्रायंगल ADB देखें, दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। और सपोज कि अगर हम इस एंगल ए को, आप देखिए ध्यान से, इस एंगल को सपोज फाई डैश कंसीडर कर लें, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल कंप्लीट, दिस इज फाई डैश। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोस फाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, कोस फाई डैश इज इक्वल्स टू this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, this is AD over में AB, clear? This is angle 90 degree, so AD over में AB किसके इक्वल आ जाएगा, this is equals to AD is equals to AB cos phi dash, clear? तो यहाँ से AD किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस फाई डैश। इन सिमिलर वे कि जैसे हमने पहले आर वेक्टर डॉट N1 कैप निकाला, इसी तरह अगर हम आर वेक्टर डॉट N नोट कैप निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कि देखिए आर वेक्टर डॉट N नोट कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड N नोट कैप मैग्नीट्यूड कोस फाई डैश। क्लियर। यहाँ से एन नोट क्या है, एन नोट इज द यूनिट वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस फाई डैश। क्लियर। तो कंपेयर कीजिए इक्वेशन, सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 3rd एंड दिस इज 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन नोट कैप। क्लियर। तो आप देखिए पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज पार्ट डिफरेंस। तो अगर हम बी सी और ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी। तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट एन नोट कैप के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ जो हमने पार्ट डिफरेंस इवेलुएट किया है, ये इट विल लीड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस this part difference is equals to n lambda. So r vector dot n1 cap minus r vector dot n naught cap is equals to n lambda. Clear? इसी के साथ देखिए आप यहाँ से कि r वेक्टर डॉट, अगर यहाँ से r वेक्टर कॉमन ले लें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, r1 कैप माइनस में n नोट कैप के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। देखिए अगर इसमें ये इंसिडेंट बीम को अगर आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस डायरेक्शन में, इस तरह से। क्लियर। और ये वेक्टर किसकी इक्वल है, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन वेक्टर। अगर इसे अलग से दिखाएं पिक्चर में तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड बीम की डायरेक्शन है। देखिए यहाँ से अगर इसे एक्सटेंड करें तो ये डायरेक्शन और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड बीम की डायरेक्शन। तो ये क्या है, एन नॉट एंड दिस इज एन वन कैप। तो ये वेक्टर जो है, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन वेक्टर। क्लियर।
this is n vector, and now evaluate. Let mark at this position that this point as M, and suppose this point is Q. Here you can mark here. Let this is A point, this is M, and this is Q. Clear? So if we see in this triangle, then this n naught cap plus n वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 कैप। ये क्या है, ट्रायंगल लो से आप देखें कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड बीम का वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n नोट कैप प्लस में n वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 कैप के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए कि n वेक्टर किसके इक्वल आ गया, दिस इज n1 कैप माइनस में n नोट कैप के इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, विच इज़ इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ से r वेक्टर डॉट कैपिटल n वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ n वेक्टर जो है कि सपोज दिस n वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। सो उस केस में क्या होगा, लेट कंसीडर दैट दिस n वेक्टर मेक्स एंगल, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स between n vector and crystallographic axis which is a vector, b vector and c vector। क्लियर? तो अगर अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, एंगल्स हैं n वेक्टर का a के साथ, n वेक्टर का b के साथ और n वेक्टर का c के साथ गामा एंगल है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे? दैट a वेक्टर डॉट n वेक्टर। क्लियर? ये किसके इक्वल होगा, a वेक्टर मैग्नीट्यूड n वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर? इसी तरह b वेक्टर डॉट ये किसके इक्वल होगा, b वेक्टर मैग्नीट्यूड n वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस बीटा के इक्वल होगा। इसी तरह c वेक्टर डॉट n वेक्टर c वेक्टर मैग्नीट्यूड n वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस गामा के इक्वल होगा। क्लियर? अब आप यहाँ से देखिए कि हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने ये डायफ्रैक्शन की कंडीशन निकाली है। अगर इस इक्वेशन को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, हमने क्या इवेलुएट किया कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर इसे यहाँ r वेक्टर क्या है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर के। क्लियर? अगर इस इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, दिस इक्वेशन, write this equation in form of components। क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस विल बी a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा, c वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू n3 लैम्डा। क्लियर? और हमने क्या बताया कि अगर n वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, तो यहाँ से a वेक्टर डॉट n वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, a n कोस अल्फा के। क्लियर? तो आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, a n कोस अल्फा इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा, b n कोस बीटा इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा, c n कोस गामा इज इक्वल्स टू n3 लैम्डा। क्लियर? Now see here, these n1, n2 and n3 are integers, and these integers may form the set of smallest integers so that they may be identical with the Miller indices. And so we can write this n1 as nh, n2 as nk and n3 as nl, where h, k, l are the Miller indices for plane, crystal plane. Clear? So we can write this as
ए वेक्टर एन वेक्टर कोस अल्फा इज इक्वल्स टू एन एच लैम्डा, बी वेक्टर कोस बीटा इज इक्वल्स टू एन के लैम्डा, सी वेक्टर is equals to cos gamma is equal to n l lambda. Clear? So we can write this equation as this. इसी के साथ आप देखिए इससे यहाँ से कि अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें ए एम क्यू ट्रायंगल, क्लियर, हमने क्या किया था कि इस इंसिडेंट बीम को फर्दर एक्सटेंड किया था और ये वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है, क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि अगर इस बीम को आगे एक्सटेंड करें और ये क्या है एन वन कैप और ये एन नॉट कैप और ये डायरेक्शन किसकी है, एन वेक्टर की, क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि इन ट्रायंगल ए एम क्यू, इन ट्रायंगल ए एम क्यू ट्रायंगल में देखिए यहाँ से दिस इज ए एम क्यू, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दिस इज एम क्यू ओवर में ए क्यू के इक्वल होगा, क्लियर। यहाँ से एम क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज एन बाय टू एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू एन यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सो साइन थीटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यूनिटी के इक्वल, तो ये क्या आ गया एन बाय टू, सो दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एन की वैल्यू क्या आ गई इंटू टू साइन थीटा कोस अल्फा इज इक्वल्स टू एन एच लैम्डा, बी वेक्टर इंटू टू साइन थीटा कोस बीटा इज इक्वल्स टू एन के लैम्डा एंड सी वेक्टर टू साइन थीटा cos gamma is equals to n l lambda. So we can write these equation as twice of a sin theta cos alpha is equals to n h lambda, 2a b sin theta cos beta is equal to n k lambda and 2c sin theta cos gamma is equals to n l lambda, and these are the Lave's equations which defines the diffraction in crystals. Clear? So let I repeat this all, that हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि हमने दो पॉइंट्स कंसिडर, दो एटम्स कंसिडर किए इन क्रिस्टल और इन पर बीम इंसिडेंट की गई, एक्सरे बीम, एन नॉट इज़ द यूनिट वेक्टर फॉर इंसिडेंट बीम एंड एन वन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर फॉर रिफ्लेक्टेड बीम। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, पार्ट डिफरेंस निकाला विच इज़ बी सी माइनस ए डी, और इन ट्रायंगल्स के थ्रू हमने ये इवेलुएट किया कि बी सी आर वेक्टर एन वन कैप के इक्वल है और ए डी आर वेक्टर डॉट एन नोट के इक्वल है। तो यहाँ से हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया विच इज़ आर वेक्टर डॉट एन वन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट एन नोट कैप, और ये पार्ट डिफरेंस अगर वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ के तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, इस वैल्यू के इक्वल। यहाँ से अगर आर वेक्टर कॉमन ले लिया जाए तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, एन वन माइनस में एन नोट, और हमने आगे क्या किया कि अगर हम इस इंसिडेंट वेव को आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ से ये वेक्टर किसके इक्वल आता है, एन वेक्टर के इक्वल आता है। तो यहाँ से ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू यहाँ से ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, एन वेक्टर, तो यहाँ से एन नोट कैप प्लस में एन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, एन वन कैप के इक्वल आ जाएगा। तो एन वेक्टर किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू एन वन कैप माइनस में एन नोट कैप के इक्वल होगा, क्लियर। तो यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए किसकी, एन वन कैप माइनस में एन नोट की, तो ये एन वन कैप माइनस में एन नोट किसके इक्वल होगा, कैपिटल एन वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमने क्या इवेलुएट कर लिया कि आर वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा के इक्वल आ गया, क्लियर। अब यहाँ से देखिए कि अगर ये एन लैम्डा
इस इक्वेशन को में अगर देखें कि अगर हम इस इक्वेशन में एन वेक्टर के एंगल देखें किसके साथ, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के साथ। क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के साथ हमने एंगल क्यों देखे, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में ये इक्वेशन है, अगर हम इसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें जहाँ आर वेक्टर इसके इक्वल है तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट एन कैप, बी वेक्टर एन कैप, सी वेक्टर एन कैप। और यहाँ से अगर इनके बीच का एंगल निकालें, मीन्स अगर एन वेक्टर क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस ए वेक्टर के साथ कोस मीन्स अल्फा एंगल बना रहा है और इसी तरह एन वेक्टर बी के साथ बीटा एंगल बनाए और एन वेक्टर सी के साथ गामा एंगल बनाए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए एन कोस अल्फा के। इसी तरह बी डॉट एन वेक्टर बी एन कोस बीटा के, सी एन किसके इक्वल लिख सकते हैं, सी एन कोस गामा के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमने इन इक्वेशंस को किसके साथ इसमें रख दिया, जो हमने डायफ्रैक्शन की इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हमने कंडीशन निकाली। क्लियर। तो यहाँ से अगर इन वैल्यूज़ को दिस ए एन कोस अल्फा, बी एन कोस बीटा और सी एन कोस गामा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये इक्वेशंस मिल जाती हैं। और यहाँ पे n1 n2 और n3 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। और अगर इफ़ दीज इंटीजर्स forms, these are set of integers and they may be identical with the Miller indices of crystal planes, and so we can write this n1 as nh, n2 as nk and n3 as nl, and so these equation will become a n cos alpha nh lambda, b n cos beta nk lambda, c n cos gamma nl lambda। क्लियर। तो यहाँ तक इसके बाद देखिए कि अगर हम ट्रायंगल देखें ए एम क्यू, तो यहाँ से एम क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये कंप्लीट एन है तो ये एम क्यू किसके इक्वल होगा, एन बाई 2 के, और ए क्यू क्या है, एन वन कैप। तो यहाँ से अगर साइन थीटा इवेलुएट किया जाए तो हम यहाँ से एन वेक्टर निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया इस एन वेक्टर की। तो यहाँ से क्या इक्वेशंस आ गई, दिस इज a साइन थीटा कोस अल्फा, एन एच लैम्डा 2b साइन थीटा कोस बीटा, एन के लैम्डा 2c साइन थीटा कोस गामा, एन एल लैम्डा, एंड दीज आर द लावेज इक्वेशन। इसके बाद देखिए कि हम इन इक्वेशन के थ्रू ब्रैग्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए हमने क्या देखा कि एन वेक्टर क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, सी के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो हमें कोसाइंस लॉ पता है विच इज़ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है, यूनिटी के इक्वल है। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन एच लेमडा ओवर में 2a साइन थीटा। क्लियर। सिमिलरली कोस बीटा इज इक्वल्स टू एन एच लेमडा ओवर में 2a एन के लैम्डा 2a साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से कोस गामा इज इक्वल टू एन एल लैम्डा ओवर में 2a साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा, एन एच लैम्डा ओवर में 2a साइन थीटा स्क्वायर प्लस एन के लैम्डा ओवर 2a साइन थीटा स्क्वायर प्लस एन एल लैम्डा ओवर 2a साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम कॉमन ले लें एन लैम्डा ओवर में 2 सॉरी here is mistake, this is b and here there is c, this is a b c। clear। so this is b and this is c, so 2 sin theta square is h square over a square plus k square over b square plus l square over c square, this is equals to 1। और हमने देखा था कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसकी इक्वल होती है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करके और डी को नीचे ले आएँ तो ये एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर किसके लिए आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डी स्क्वायर।
इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी इक्वेशन, दिस इज एन लेमडा ओवर 2 साइन थीटा स्क्वायर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट। क्लियर। तो यहाँ से एन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए तो ये एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा विच इज़ ब्रैग्स लॉ। सो इस तरह से हम लावेज इक्वेशन से ब्रैग्स लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। So this is all about today's lecture. Thank you students.